Okay, Harleen, start the prayer. Pray before study. Lord of all power and might, give me wisdom and understanding today. Let me grow in knowledge and bear fruit in active goodness. Strengthen me with ample power to meet whatever comes with fortitude, patience, and to give joy and to give thanks to you in all things. Amen. Okay. Okay. So in the last class we have started about the different evidences of evolution. Okay, so we have studied about the homologous organs, the analogous organs, that all are the evidences for the evolution, and we also have discussed about the acquired traits and the inherited traits. Now we are continuing with the evidences of evolution. Okay, so we have discussed about the archaeopteryx, that is a connecting link between the reptiles and the words. Okay, so उसने कहा है कि archaeopteryx जो है that is a fossil. Okay, that is a fossil and that provide the evidence that कि आर्क्योप्टेरिक्स जो है वो कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स के बीच में और वर्ड्स के बीच में. तो उसने कहा कि फॉसिल प्रोवाइड द एविडेंस दैट द प्रेजेंट एनिमल हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग वंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन. Okay, so क्योंकि archaeopteryx is a connecting link between the reptiles and the words, so we have discussed कि uh, words have evolved from the reptiles. Okay, so we are just discussing about the evidences of evolution and we're continuing with it. So today we will discuss about the fossilization. Okay, what is fossilization? So you can see in the picture, fossilization refers to a process by which the fossils are preserved. Predators, scavengers, and bacterial action normally decompose the dead plants and animal before they can be fossilized. Okay, fossilization क्या process है जिसमें fossils जो हैं वो preserved होते हैं. तो उसने कहा है predators और स्क्वेंजर्स. यू नो कि प्रेडेटर्स क्या होते हैं, स्क्वेंजर्स हैं. प्रेडेटर्स, स्क्वेंजर्स एंड बैक्टीरियल एक्शन जो है नॉर्मली डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो भी प्रेडेटर्स होते हैं जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, छोटे एनिमल्स को खाते हैं. स्क्वेंजर्स होते हैं जो डेड बॉडीज को खाते हैं. एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है वो भी डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं बाय रिलीजिंग द स्पेसिफिक एंजाइम्स. ओके, so however, numerous fossils have been discovered. Let's learn about various fossil forms before studying the formation. Okay, so उसने कहा कि we will see कि different forms of fossils, and one more important thing is that the branch of science that deals with the study of fossil is called as a paleontology. This you have to remember, that the branch of science that deals with the study of fossils is called as a paleontology, and fossilization refers to the process by which fossils are preserved. Okay, now we are having different forms of fossils: mold, petrification, preservation, and trace. Okay, so these are the different forms of fossils. You can see in the picture, four different forms are there. First one is the mold. Okay, उसने क्या है, when the organic matter decays, it leaves space that become a mold. This mold is filled by mineral matter. Okay, उसने कहा जब भी organic matter जो है उसकी decaying होती है धीरे धीरे, तो it forms the mold, and mold is filled by mineral matter. बाद में जो mold है उसमें फिर बाकी जो mineral matter, क्योंकि वो भी soil में present होता है तो वो भी उसमें add हो जाते हैं. These are the different forms of fossils. Then we are having the petrification. उसने कहा it refers to a process by which a dead organisms organic matter is replaced by mineral ions. कि जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है जो धीरे धीरे फॉसिलाइज्ड हो रहा है, फॉसिल बन रहा है, उसने कहा पेट्रिफिकेशन मीन कि डेड ऑर्गेनिज्म जो है उसका, जैसे कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, या कोई भी ले लो आप, एनिमल, ह्यूमन बींग या कोई भी, उसकी जो डेड बॉडी है, जो उसका डेड ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो यू नो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मैटर होगा वो ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं. ओके, ऑर्गेनिक मैटर मीन्स मैटर डेट आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है, उसने कहा डेड ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर इज रिप्लेस्ड बाय मिनरल आइंस. तो धीरे धीरे वो जो उसका ऑर्गेनिक मैटर है वो चेंज हो जाता है मिनरल आइंस में.
Then preservation, it refers to a process in which whole organism intact. Okay, so this is very very simple कि preservation में क्या कि whole पूरा जो organism है वो intact रहता है. ओके, जो भी एनिमल है, प्लांट है, तो वो धीरे धीरे नीचे नीचे जमीन नीचे नीचे जाता जाएगा, तो वो पूरा क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, उसकी ब्रेक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. जैसे फर्स्ट में आप देख रहे हो कि मिनरल मैटर जो है वो बन रहा है, सेकंड में वो मिनरल आइंस में चेंज हो रहा है, लेकिन थर्ड में उसने कहा कि प्रिजर्वेशन में वो क्या रहेगा, पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलियन ऑफ ईयर्स तक क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा. And then the trace, it refers to an impression of a form such as leaf or a footprint that is made in layers. It gets hardened later. Okay, तो इसने इसमें उसने कहा कि ट्रेस, कोई भी लीफ है, अगर लीफ जैसा का जैसा जो है सॉइल में वो नीचे नीचे धंसता जाएगा, तो वो फुटप्रिंट वैसा का वैसा रहेगा. तो उसने कहा इट रेफर्स टू एन इम्प्रेशन ऑफ ए फॉर्म सच एज लीफ और ए फुटप्रिंट दैट इज मेड इन लेयर्स. जो अर्थ की लेयर्स जो है उसमें रह जाता है और वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, हार्ड होता जाता है. ओके, सो उसने कहा दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉसिल. उसने कहा वी विल सी कि हाउ फॉसिल्स आर फॉर्म, फॉसिल्स कैसे बनते हैं. यू ऑलरेडी नो, यू ऑलरेडी हैव स्टडीड की छोटी क्लासेस में कि फॉसिल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है. ओके, तो उसने कहा व्हेन एनिमल्स, ओके, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स कैसे होता है, तो उसने कहा व्हेन ऑर्गेनिजम्स डाई, जो भी प्लांट्स और एनिमल जब उनकी डेथ हो जाती है, देयर बॉडीज विल डीकम्पोज. ओके, उनकी जो बॉडी है डेट इज डीकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर, जो भी वहां प्रेजेंट होता है. जब एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, प्लांट या एनिमल की, तो उसकी बॉडी जो है वो जो वहां पड़ी होगी वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट होती है. उसने क्या, कंडीशंस जो भी हैं इन्वायरमेंट की, जैसे ऑक्सीजन उनको मिल रही है, मॉइस्चर की हेल्प से वो धीरे धीरे जो बैक्टीरिया हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको डिकम्पोज करते रहते हैं. ओके, तो उसने क्या, इट इज सच बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच वी गेट एज फॉसिल ऑन डिगिंग द अर्थ. ओके, तो ये उसने कहा है कि ये वही बॉडीज होती हैं जो हम अर्थ को जब डिगिंग करते हैं तो हमें ये बॉडीज मिलती हैं. In many cases, the soft part of the organism get decomposed, and what we get as a fossil is a skeleton of hard parts. उसने कहा मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो सॉफ्ट पार्ट है बॉडी के, वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं. जो हमें फॉसिल मिलता है वो क्या मिलता है, स्केलेटन. ओके, स्केलेटन ऑफ हार्ड पार्ट्स, जैसे बोन्स वगैरह हो गए. लेकिन कुछ केसेस में इवन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर समटाइम प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स इन द फॉर्म ऑफ देयर इम्प्रेशंस इनसाइड द रॉक्स. ओके, उसने कहा कुछ केसेस में क्या होता है कि इवन जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स में आर समटाइम प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स. ओके, इन द फॉर्म ऑफ देयर इम्प्रेशन. रॉक्स में उनका जो इम्प्रेशन है, जैसे लीव्स हैं, उनका जो है लीव्स है, ब्रांचेस है, तो उनका जो इम्प्रेशन है वैसा का वैसा रह जाता है. जैसे एग्जाम्पल उसने किया, इफ ए डेड लीफ गेट्स कॉट इन मड इट विल नॉट डिकम्पोज क्यूकली. ठीक है, वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होती. द मड अराउंड द लीफ विल सेट अराउंड इट एज अ मोल्ड. तो उसका जो मड है, मड में वो जो लीफ है वो धीरे धीरे सेट होता जाएगा नीचे तरफ, वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो सेट होता जाएगा. सो उसने कहा ग्रेजुअली हार्डन टू फॉर्म अ रॉक एंड रिटेन द इम्प्रेशन ऑफ द होल लीफ. तो वो जो लीफ है वो ब्रेक नहीं होगा. ओके, नीचे तरफ जाता जाएगा तो वो पूरा का पूरा हमें लीफ का इम्प्रेशन मिल जाएगा. ओके, सो दिस फॉर्म्स अ लीफ फॉसिल. इसे हमें लीफ का फॉसिल मिल गया, विच कैन बी डग आउट फ्रॉम द अर्थ आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. बड़े लॉन्ग टाइम के बाद भी हम उसको वहां से निकाल सकते हैं. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस कि हाउ फॉसिलाइजेशन, हाउ फॉसिल्स आर फॉर्म्ड. लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब डेथ होती है तो उनकी जो बॉडीज है वो डिकम्पोज होती हैं. डिकम्पोज होने के बाद जो हार्ड स्केलेटन्स होते हैं वो जो है वो डिकम्पोज नहीं होते, तो वो हमें एज अ फॉसिल मिलते हैं. लेकिन उसका सम टाइम जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं बॉडी के, उसको भी हम एज अ फॉसिल जो है वो भी फॉसिल बन जाता है, क्योंकि उनका जो इम्प्रेशन है वो वैसा का वैसा उसमें रह जाता है. ओके, तो देन उसने कहा कि फॉसिल्स आर ऑब्टेन. अब हम फॉसिल्स हमें कैसे मिलते हैं, दैट यू नो कि फॉसिल्स आर ऑब्टेन बाय डिगिंग इनटू द अर्थ. ओके, हम अर्थ में डिगिंग करके फॉसिल जो है ऑब्टेन कर सकते हैं. उसने कहा व्हेन वी डिग इनटू द अर्थ वी फाइंड फॉसिल्स एट डिफरेंट डेप्थ. हमें फॉसिल जो है वो डिफरेंट डेप्थ पे मिलते हैं. ओके, द फॉसिल विच वी फाइंड इन लेयर क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ आर मोर रिसेंट. जो हम हमें अर्थ के सरफेस के पास मिलते हैं वो रिसेंट होते हैं. द फॉसिल विच आर फाउंड इन डीपर लेयर्स आर ओल्डर. और जो ज़्यादा डीपर लेयर में मिलते हैं वो ओल्डर होते हैं, वाइल द फॉसिल्स फाउंड इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ अर्थ आर द ओल्डेस्ट वन. ओके, जो डीपर लेयर में होते हैं वो ओल्डेस्ट वन होते हैं, जो क्लोजर लेयर में होते हैं डेफिनेटली दे वर द रीसेंट वन. Okay, so these are different ways ki how fossils are formed and how fossils are obtained by digging into the earth, and we are having the different forms of fossil. जैसे एक पूरा ऑर्गेनिज्म इंटैक्ट हमें मिल जाएगा, या फिर कुछ सॉफ्ट पार्ट बॉडी के जो हैं वो मिल जाएंगे, या आर यू कैन से कि पेट्रिफिकेशन, कि जो डेड ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिक मैटर है दैट इज replaced by the mineral lines. So we are accordingly we are having the different type of fossil forms.
Okay, now again this is the formation of fossil. जो मैंने आपको already बोला कि what is the formation of fossils, or you can say how fossils can be formed. तो उसने कहा some 100 million years ago some invertebrates on the seabed died and got buried in the sand. ये example यहाँ पे दी हुई है कि 100 million years ago invertebrates on the seabed died and got buried in the sand. Okay, buried हो गए sand में. As more sand got accumulated, the formation of sandstone under pressure conditions occurred. अब उसमें से ज़्यादा ज़्यादा साउंड सैंड जो है वो एक्यूमुलेट होगी, तो फॉर्मेशन ऑफ सैंडस्टोन अंडर प्रेशर कंडीशंस ऑकर, तो वहाँ पे वो प्रेशर होगा क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो तो वरिड होगी उसके अंदर, तो ज़्यादा ज़्यादा सैंड्स जो है वो सैंड जो है वो कलेक्ट होगी, एक्यूमुलेट होती जाएगी. सो मिलियन ऑफ ईयर्स लेटर डायनासोर्स लिविंग इन द एरिया डाइड एंड देयर डेड बॉडीज ऑल्सो गॉट वरिड इन मड. ओके, मिलियन ऑफ ईयर्स लेटर डायनासोर्स जो थे उनकी भी डेथ हुई, उनकी बॉडी भी वरिड होगी. द मड गॉट कंप्रेस्ड इनटू रॉक्स अबव द इनटू रॉक अबव द रॉक दैट कंटेन द फॉसिल ऑफ डेड इन्वर्टिब्रेट्स. अब देखो, पहले उसने कहा कि इन्वर्टिब्रेट्स वरिड हुए, उसके ऊपर सैंड एक्यूमुलेट हुई, फिर उसके बाद जो डायनासोर्स थे उनकी डेथ हुई. ओके, वो भी वरिड हुए, फिर और सैंड एक्यूमुलेट हुई. सो धीरे धीरे उसने कहा कि वी विल गेट द फॉसिल्स, कंप्रेशन ऑफ मड इनटू रॉक अबव रॉक कंटेनिंग फॉसिल्स ऑफ डेड इन्वर्टिब्रेट्स. तो हमें जो नीचे है वो क्या मिलेगा, फॉसिल्स ऑफ डेड इन्वर्टिब्रेट्स. तो एक लेटर वाला है, एक रिसेंट वाला है. सो अकॉर्डिंगली वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स. नेक्स्ट, उसमें again million of years later the bodies of dead horse like creature got buried in the area further getting fossilized in the rock above the existing rock. So accordingly देखो, पहले vertebrates की हुई, फिर dinosaurs की हुई, then you are having the rocks. तो ऐसे ऐसे करके हमें जो fossils हैं वो मिलते जाएंगे. Much later due to activities like erosion by water the horse like fossils are exposed. Other fossil can also be obtained on digging deeper. अब जितना ज़्यादा हम उसको डीप उसकी डिगिंग करते जाएंगे, ज़्यादा डीप करेंगे तो हमें इन्वर्टिब्रेट्स मिलेंगे, और थोड़ा कम करेंगे तो हमें डायनासोर्स मिलेंगे, थोड़ा और होंगे तो हॉर्स मिलेंगे. सो इन दिस वे वी आर गेटिंग द, उसने कहा कि हमें फॉसिल्स इस वे में मिलते हैं कि सबसे पहले जैसे आपने देखा कि दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल, कि पहले इन्वर्टिब्रेट्स जो है वरिड हुए, फिर डायनासोर्स वरिड हुए, उनके ऊपर भी सैंड एक्यूमुलेट होती गई, फिर हॉर्सेस हुए. सो इस वे में जो है वो फॉसिल्स हमें मिलते हैं, और हम उनको डिगिंग से जितना डीपर करेंगे, ज़्यादा डीप करेंगे तो इन्वर्टिब्रेट्स मिलेंगे, थोड़ा कम करेंगे तो डायनासोर्स मिलेंगे, उससे कम करेंगे तो हॉर्स. ओके, सो दिस इज द formation of fossils. Okay, so this is all about the fossils. Okay, that you have to write about the fossils evidences of evolution. Okay, so in this topic you have to study first of all the archaeopteryx, the connecting link, that is also the fossil providing the evidence for evolution. Okay, that is a very important example. You all have to write about archaeopteryx, that is a connecting link between the reptiles and the birds. Then you have to write ki which character it is showing of the reptiles and of the birds, दोनों में से वर्ड्स के क्या करेक्टर शो कर रहा है आर्कियोपेटेरिक्स, रेप्टाइल्स के कौन से करेक्टर शो कर रहा है. देन यू हैव टू राइट अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉसिल्स, 4 different forms of fossil, then how fossils are formed and how fossils are obtained. Okay, so this is all about the fossils. Okay, and we are studying about the fossil. Why? Because fossils are providing the evidences for evolution. Okay, and you all know कि evolution क्या है, the formation of new, उसने कहा sequence of gradual changes which takes place in the primitive organism over million of years to form new species, and we are studying the evidences of evolution. So we are having the different type of evidences of evolution, that is the homologous organs, the analogous organ and fossils. 3 important evidences है हमारे पास evolution के, and one more is the your vestigial organs. Okay, so whenever a question is asked about the evidences of evolution, so then you have to write about the homologous organs, the analogous organs and the fossils and the vestigial organs. Vestigial. Okay, so now this is all about the fossils, about the evidences of evolution. Now we are having the most important question, that is the Darwin's theory of natural selection. Okay, so this is the Darwin's theory of evolution. Okay, yes, are you all listening? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we are Yes, having, ma'am. okay.
So we are having the Darwin's theory of evolution. This theory is also called as the Darwin's theory of natural selection. Okay, तो उसने कहा Charles Darwin gave the theory of natural selection that is applicable to both plants and animal. Okay, Charles Darwin जो था इसका फुल नेम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन. ओके, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन वाज अ ब्रिटिश नेचुरलिस्ट. उसने उसने कहा हु मेड सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ बायोलॉजी. ओके, एंड डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. ओके, डार्विन ने थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की. दैट थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ओके, so this you have to remember that Darwin gave the theory of evolution. That theory is also called as a theory of natural selection in his book The Origin of Species. Okay, so three things you have to remember: ki who gave the theory? Darwin gave the theory of evolution. And second, this theory is also called as a theory of natural selection. And thirdly, किस बुक में दी थी? In his book Origin of Species. Okay, don't forget this. The theory of natural selection suggests that the okay, this is important. The theory of natural selection suggests that the best adapted organisms are naturally selected to pass on their traits to the offsprings. Okay, according to this theory, ये theory क्या कहती है कि best adapted organisms are naturally selected to pass on their traits to their offsprings. Means कि nature उन्हीं organisms को select करता है जो best suited होते हैं अपने environment में, बेस्ट सूटेड होते हैं, बेस्ट सेलेक्टेड होते हैं. नेचर उन्हीं को सेलेक्ट करता है और वही ट्रेड्स जो हैं, वो जो बेस्ट सूटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बेस्ट अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं के ट्रेड्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल सिलेक्शन. ओके, आर यू ऑल गेटिंग? Yes, ma'am. Okay, so just try to understand the example. With this example you will understand ki what is the theory of natural selection or the Darwin's theory of evolution. Okay, उसने कहा natural variation occurs within a population. Just try to understand, just read into look into the picture carefully, then you will understand. Natural variation occurs within any population. The population of species, even on producing a large progeny, remain fairly constant naturally. This occurs as member of same species and different species compete for food, shelter and mate. फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग क्या है? नेचुरल वेरिएशन ऑकर्स विद इन एनी पॉपुलेशन. उसने कहा किसी भी पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन आ सकती है. जैसे आई हैव गिवन यू द एग्जांपल कि 10 बैक्टीरियाज हैं, एक पॉपुलेशन है 10 बैक्टीरिया की. आउट ऑफ 10 बैक्टीरिया 9 रिमेन्स द सेम. 10th वाले में एक वेरिएशन आ गई कि वो क्या बन गए? हीट रेजिस्टेंट. ओके, तो दैट इज अ नेचुरल वेरिएशन कि नेचुरली उसमें एक वेरिएशन आ गई. उसने एक पॉपुलेशन के अंदर, वो एक पॉपुलेशन थी ना बैक्टीरिया की, तो उसमें नेचुरल वेरिएशन ऑकर्स विद इन एनी पॉपुलेशन, कभी भी उसमें आ सकती है. The population of species, even on producing a large progeny, remain fairly constant naturally. उसने कहा कि एक स्पीसीज जो है वो बड़े सारे पॉपुलेशन स्पीसीज का इवन ऑन प्रोड्यूसिंग ए लार्ज प्रोजेनी, एक स्पीसीज जो है वो लार्ज प्रोजेनी प्रोड्यूस करती है फिर भी कांस्टेंट रहती है. उसने कहा दिस ऑकर एज मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज एंड डिफरेंट स्पीसीज कॉम्पीट फॉर फूड, शेल्टर एंड मेट. जैसे आपकी फूड चेन है, तो आपको पता है फूड चेन में हर एक जो ट्रॉपिक लेवल है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है. उसने कहा वो स्टेबल रहती है क्योंकि उसके भी प्रेडेटर्स हैं जो उसको खाएंगे नेक्स्ट उसके. ओके, तो फूड चेन में ये चीज़ होती है. तो सेम उसने कहा कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो स्पीसीज है वो लार्ज प्रोजेनी प्रोड्यूस करती है लेकिन फिर भी कांस्टेंट रहती है क्योंकि वहाँ पे उनके बीच में डिफरेंट स्पीसीज के बीच में या फिर सेम स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है. ओके, फूड के लिए, शेल्टर के लिए और मेट के लिए. और जो फूड, शेल्टर और जो बेस्ट सूटेड होते हैं, जो बेस्ट सर्वाइव कर सकते हैं, मींस जो कॉम्पीट कर सकते हैं अपने मेंबर, सेम स्पीसीज के मेंबर के साथ या फिर डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के साथ फूड के लिए, शेल्टर के लिए, वो सर्वाइव करते हैं. जो कॉम्पीट नहीं कर सकते उनकी डेथ हो जाती है. ओके, सो now the third point is important. The unfit organisms are left out in the struggle for survival within a population. Okay, जो अनफिट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कॉम्पीट नहीं कर सकते मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज के साथ या फिर डिफरेंट स्पीसीज के साथ, तो वो वहां से क्या हो जाते हैं? लेफ्ट आउट इन द स्ट्रगल, वो पीछे रह जाते हैं स्ट्रगल में. दिस रिजल्ट इन पॉपुलेशन ऑफ फिट ऑर्गेनिज्म शोइंग फेवरेबल वेरिएशन दैट हेल्प देम टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. ओके, जो अनफिट ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? इलिमिनेट, बिकॉज दे आर नॉट able to fight. Okay, वो they are not able to compete, वो compete नहीं कर सकते, वो eliminate हो जाएंगे. Okay,
उससे जब वो अनफिट ऑर्गेनिज्म इलिमिनेट हो जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, दिस रिजल्ट इन पॉपुलेशन ऑफ फिट ऑर्गेनिज्म, जो फिट ऑर्गेनिज्म वो रह जाएंगे पीछे। और उन ऑर्गेनिजम्स में क्या उनके करेक्टर्स क्या होंगे, शोइंग फेवरेबल वेरिएशंस दैट हेल्प देम टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। सपोज जैसे एक ऑर्गेनिज्म वो स्ट्रांग है, उसने दूसरे वाले को इलिमिनेट कर दिया, वहां से निकाल दिया, तो डेफिनेटली वो जो रह गया, जो पॉपुलेशन रह जाएगी, वो उसमें फिट ऑर्गेनिज्म होंगे और उनके पास फेवरेबल वेरिएशंस होंगी जो उनको हेल्प करेंगी सर्वाइव करने के लिए। ओके, दिस इज रेफर्ड टू एज द नेचुरल सिलेक्शन, इसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। द फेवरेबल वेरिएशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग्स इन द सक्सेसिव जनरेशन। अब ये जो जो फिट ऑर्गेनिज्म है, जैसे एक एग्जांपल लो बस, वो जो फिट ऑर्गेनिज्म है वो फिर से रिप्रोड्यूस करेगा, अपने वो वाले जो करेक्टर्स हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को भी देगा। तो उसने कहा द फेवरेबल वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग्स इन द सक्सेसिव जनरेशन, जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएंगी उनमें भी वो वेरिएशंस होंगी। उसकी जो स्ट्रांग है कि वो स्ट्रांग है, वो स्ट्रगल कर रहा है, कॉम्पीट कर पा रहा है। This the origin of a new species occur when the variations are accumulated over a period of time. अब वो जो एक ऑर्गेनिज्म था उसने अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए, उसमें फिर और वेरिएशंस धीरे 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 आती जाएंगी, तो फाइनली मिलियन ऑफ ईयर्स तक वो जो ऑर्गेनिज्म है एक नई स्पीसीज प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो उसने कहा origin of a new species occurs when the variations are accumulated। एक बार वेरिएशन आई, फिर कोई और वेरिएशन आएगी, तो वेरिएशन जब एक्यूमुलेट हो जाएंगे, बड़ी सारी वेरिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा सारी वेरिएशन आ जाएंगी, तो फाइनली देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, आई विल गिव यू एग्जांपल, उस एग्जांपल से द टॉपिक विल बिकम मोर क्लियर टू यू, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स। ओके, डार्विन्स थ्योरी की ये पोस्टुलेट्स हैं कि विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज नेचुरल वेरिएशन। okay, even though all species produce a large number of offspring, population remain fairly constant, population constant रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है, क्योंकि देयर इज अ कंपटीशन, सेम स्पीसीज के बीच में, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है, और जो स्ट्रांग वाले होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, जो स्ट्रांग नहीं होते उनके इलिमिनेट हो जाते हैं। इसलिए लार्ज नंबर की प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के बाद भी जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि देयर इज अ कंपटीशन, और कंपटीशन में कुछ सर्वाइव करते हैं, कुछ इलिमिनेट हो जाते हैं जो अनफिट होते हैं। ओके, तो अनफिट आर लेफ्ट आउट। okay, then fourth point, the favorable, okay, and you have to write all these point in sequence, ये इसके postulates हैं, important points है डार्विन्स थ्योरी के, and all are important। okay, the favorable variation of organism are inherited by the offsprings in the successive generation। अब वो जो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास फेवरेबल वेरिएशन है, मीन वो स्ट्रांग है, उसने कॉम्पीट किया, स्ट्रगल किया और दूसरे को एलिमिनेट कर दिया, अब वो वही करेक्टर अपने अपने ऑफस्प्रिंग्स को भी देगा, और धीरे धीरे वो जो ऑफस्प्रिंग्स है वो बेस्ट सूटेड ऑर्गेनिज्म था, बेस्ट अडेप्ट, जिसने अडेप्ट किया, स्ट्रगल किया, फाइट किया अपने मेंबर्स के साथ, डिफरेंट मेंबर के साथ, और धीरे धीरे उसमें और वेरिएशंस आते जाएंगे, और फाइनली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। okay, so these are the different postulates or points of the Darwin's theory। okay, now just try to understand the example, so okay, let's try to understand Darwin's theory of evolution by natural selection with the help of an example in an, okay, this example is very very important, so all of you just listen it carefully। उसने कहा, in an ecosystem there are some giraffe having long neck and other having short neck। ठीक है, एक इकोसिस्टम है, एक हैबिटेट है। ओके, इकोसिस्टम के अंदर कुछ जिराफ हैं जिनकी लॉन्ग नेक है, एंड some having short neck। ओके, if due to some unfavorable environmental conditions the low lying shrubs die, then there would not be enough food available for giraffe विथ शॉर्ट नेक्स। ठीक है, उसने कहा ड्यू टू अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो नीचे शर्ब्स थे वो उनकी डेथ होगी, कुछ भी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से हो गया, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो नीचे जितने भी लो लाइंग शर्ब्स थे उनकी डेथ होगी, देन देयर वुड नॉट बी इनफ फूड अवेलेबल फॉर जिराफ विथ शॉर्ट नेक्स। अब क्योंकि जो शॉर्ट नेक वाले जिराफ थे उनको खाना नहीं मिला, क्योंकि उनकी शॉर्ट नेक थी, लो लाइंग शर्ब्स तो डाई हो गए। अब उसने कहा दिस विल रिजल्ट इन ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ जिराफ हैविंग शॉर्ट नेक। सो देयर इज द, उसने कहा दिस विल रिजल्ट इन, जो जिराफ जिनकी शॉर्ट नेक है उनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट आफ्टर फ्यू जनरेशन ऑल द जिराफ वुड हैव लॉन्ग नेक। तो कुछ जनरेशन के बाद सिर्फ वही जिराफ बचेंगे जिनके पास लॉन्ग नेक होगी, क्योंकि शॉर्ट नेक जो थे, शॉर्ट नेक जो जिराफ थे वो खाते थे नीचे वाले लो लाइंग शर्ब्स को। अब शर्ब्स की डेथ होगी तो डेफिनेटली दे डोंट हैव द फूड, जो फूड नहीं होगा तो डेफिनेटली दे विल नॉट सर्वाइव। ओनली द जिराफ हैविंग द लॉन्ग नेक रिमेन। ओके, सिर्फ वही बचे जिनकी लॉन्ग नेक थी। So in this way, the nature selects the giraffe with long neck to survive in the existing conditions. Hence, the giraffe having short neck have never given rise to giraffe with long neck as a result of evolution mechanism.
अब उसने कहा इन दिस वे द नेचर सेलेक्ट्स द जिराफ विद लॉन्ग नेक टू सर्वाइव इन द एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो लॉन्ग नेक जिराफ के पास एक फेवरेबल वेरिएशन थी, फेवरेबल जो क्या थी, करेक्टर था, ट्रेड था कि उनके पास लॉन्ग नेक थी। सो विद द हेल्प ऑफ दैट लॉन्ग नेक दे आर एबल टू सर्वाइव। ओके, सो दिस इज द नेचर सिलेक्शन कि नेचर ने किनको सेलेक्ट किया, जो बेस्ट सूटेड थे, बेस्ट अडेप्टेड थे, जो ऊपर वाले से भी खाना खा सकते थे, लॉन्ग शर्प्स थे उनसे भी खाना खा सकते थे। ओके, सो यू कैन सी इन द पिक्चर जिराफ हैविंग लॉन्ग नेक एंड शॉर्ट नेक। ओके, फर्स्ट जो हैबिटेट इकोसिस्टम था उसमें जिराफ लॉन्ग नेक भी थे, शॉर्ट नेक वर आल्सो देयर। देन लो लाइंग शर्प्स डाई रिजल्टिंग इन ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ जिराफ हैविंग शॉर्ट नेक, क्योंकि लो लाइंग शर्प्स जो थी उनकी डेथ होगी, तो रिजल्टिंग इन ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ जिराफ हैविंग शॉर्ट नेक, सिर्फ शॉर्ट नेक जो थे उनकी डिक्रीज होगी population. Then C, in the diagram C you can see giraffe with long neck surviving in existing condition. So सिर्फ जिराफ जिनकी लॉन्ग नेक थी वही एग्जिस्टिंग कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते थे, जो दूसरे वाले थे वो एग्जिस्टिंग कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते थे, तो दे विल एलिमिनेट, वो एलिमिनेट हो गए पॉपुलेशन से। ओके, सो दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन कि नेचर सेलेक्ट ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच आर बेस्ट सूटेड, विच आर बेस्ट अडेप्टेड, एंड अदर विल गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द environment. Okay, so is this clear? This is the theory of Darwin's theory of natural selection. Okay, just tell me, is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now this is the natural selection. Now we are having the artificial selection. Okay, natural selection mean कि nature is selecting the best suited organism. nature ने best suited organism को select किया और उनको आगे वो आगे reproduce करेंगे और अपनी favorable जो variations है, जैसे long neck है, अब long neck के organism जो है long necked offsprings ही produce करेंगे। Okay, so उसने कहा कि nature ने उनको select किया, अब वो reproduce करेंगे and pass their favorable characteristics to their offsprings also. Okay, देन है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का क्या मीनिंग है? ए डेलिबरेट एंड प्लान्ड एक्टिविटी कॉज्ड बाय ह्यूमन। ओके, एक तो नेचर सेलेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को, एक वे है बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन बींग्स भी कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे उसका आर्टिफिशियल सिलेक्शन से डेलिबरेट, जो ह्यूमन बींग्स खुद करते हैं, प्लान्ड एक्टिविटी कॉज्ड बाय ह्यूमन। इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द बेस्ट और द मोस्ट यूजफुल ऑफ द प्रोजेनी एंड यूजिंग देम एज द नेक्स्ट पेरेंटल जनरेशन। ओके, इसमें ये है कि कुछ स्पीसीज के जो बेस्ट सूटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें बेस्ट करेक्टर्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स उनको सेलेक्ट करते हैं, उनको आपस में ब्रीड करवाएंगे एंड यूज देम एज द नेक्स्ट पेरेंटल जनरेशन। इन अदर वर्ड्स, आर्टिफिशियल सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड पहले सेलेक्ट करना है एंड ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स। ओके ओके, सो उसने कहा है कि जैसे वन एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू, बड़ी बार मैंने आपको दिया है फ्लोर की एग्जांपल कि एक फ्लोर जो है आपका वाइल्ड हैबिटेट में रहता है वो डिजीज रेजिस्टेंट है, एक फ्लोर जो है घरों में होता है वो ब्यूटीफुल है। ओके, तो दोनों के करेक्टर आ गए, एक फ्लोर जो है वो ब्यूटीफुल है, एक फ्लोर क्या है डिजीज रेजिस्टेंट। तो ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे, दोनों को हाइब्रिडाई करवाएंगे, दोनों को सेलेक्ट करके पहले उनको सेलेक्ट किया, चूज किया कि दोनों में बेस्ट करेक्टर्स हैं, फिर उनको आपस में ब्रीड करवाना है और ब्रीड करवाने से हमें जो नेक्स्ट जो वैरायटी मिलेगी उस वैरायटी के अंदर दोनों करेक्टर्स होंगे। ओके, सो उसने कहा आर्टिफिशियल सिलेक्शन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स। ओके, दिस लीड्स टू जेनेटिक चेंज इन द ऑर्गेनिज्म। जैसे उसने एग्जांपल दिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कैबेज प्लांट दैट हैज बीन कल्टिवेटेड बाय ह्यूमन फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। वाइल्ड कैबेज जो है, साइंटिफिक नेम इज द ब्रेसिका ओलिरेसी, वाज कल्टिवेटेड एज अ फूड प्लांट एंड वेरियस वेजिटेबल्स वर obtained from it by the process of artificial selection. ओके, तो बड़ी सारी जो डिफरेंट वेराइटीज हैं वो प्रोड्यूस हुई हैं बेसिका ओलिरेसी से। बेस्ट करेक्टर जो है डिजायर्ड, इसमें आप जरूरी नहीं है कि कोई भी आप ले सकते हो, जैसे काउस की डिफरेंट वैरायटी है, एक काउ जो है वो मिल्क ज़्यादा दे रही है या फिर एक जो है उसकी एज अच्छी है, तो उसमें क्या करेंगे, दोनों काउस के जो लेंगे, एक का मेल ले लेंगे, एक का मेल में बेस्ट करेक्टर ले लेंगे, फीमेल में बेस्ट करेक्टर ले लेंगे, तो दोनों को हाइब्रिड करवा के हमें एक वैरायटी मिलेगी जिसमें वो कऊ मिल्क भी ज़्यादा, मिल्क की जील्ड भी ज़्यादा दे रही है, एज भी अच्छी है, तो इस वे में हमें एक हाइब्रिड मिलता है। दैट हाइब्रिड इज हैविंग द करेक्टर ऑफ बोथ, जैसे मैंने आपको रोज में बोला। तो नाउ जब हमने दोनों को हाइब्रिड करवाया आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, सो वी आर हैविंग अ रोज दैट इज डिजीज रेजिस्टेंट ऑल्सो एंड दैट इज ब्यूटीफुल ऑल्सो। ओके, सो दिस इज द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ओके, सो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। आर्टिफिशियल सिलेक्शन हमारे पास बड़ी सारी वेराइटीज जो हैं आजकल जो हैं वेजिटेबल्स जो हैं प्रोड्यूस होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ओके, सो
this is all about the evolution. Okay, so in the next class we will discuss about the next topic, that is a speciation. But this is the, some of you are telling about the structure of DNA, so I have just showing you the structure of DNA. But just remember that this is very difficult and not in your syllabus, but just see ki if you want to see ki this is the structure of DNA. Okay, is this picture visible? Are you able to see this? Yes, ma'am. Okay, so Yes, I'm ma'am. ओके जस्ट Yes, ma'am. एक जो ब्रीफ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डीएनए क्या है। होल कॉन्सेप्ट आप पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर सकते बिकॉज क्योंकि इसमें बेसिक चीजें आपने पढ़ी नहीं है। दिस इज इन क्लास 11th ओनली, बट बिकॉज सम ऑफ यू आर टेलिंग कि बेसिकली है क्या, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शोइंग यू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखो, दिस इज द फर्स्ट हेलिक्स सेकंड हेलिक्स। सो डीएनए का जो स्ट्रक्चर दैट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, और ये बीच में आपस में कनेक्टेड है ब्रिजेस से, जिसको आप बेस पेयर्स बोलते हो। ये देखो एटी सीजी एडिनाइन, एडिनाइन है, ये थाइमीन है। ओके, तो ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं, ओके जस्ट रिमेंबर कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट हेलिक्स, जैसे आपकी वो हेलिक्स वाली जो स्टेयर्स होती है ना, तो इन द सेम वे डीएनए का स्ट्रक्चर भी सेम वैसे ही है। यू कैन सी हियर, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ओके, और बीच में ये जो बीच में से आप स्टेयर्स लेते हो, ओके तो स्टेयर्स जो हैं वो स्टेयर्स किससे बनी हुई है? बेस पेयर से। एडिनाइन, थाइमीन, ग्वाइनिन, साइटोसाइन, ये हमारे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, उससे बनती हैं। ओके, अब ये जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड किसका बना हुआ है? यू कैन सी हियर, दिस इज द, ये डीएनए का स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, और बेसिकली कुछ नहीं है भी, ये भी आपके वही केमिकल्स ही हैं। ओके, जैसे आपका ये देखो, जैसे आपने कार्बन कंपाउंड, अपनी केमिकल रिएक्शन जो है आपका चैप्टर केमिस्ट्री में, कार्बन कंपाउंड इफ यू हैव स्टडीड, तो आपने ये पढ़ी हुई है, ये रिंग्स हैं आपकी, ये राइबोज शुगर है। ओके, दिस इज शुगर, और ये नाइट्रोजन बेसिस हैं बीच में। तो जो आपका स्ट्रैंड मैंने आपको बताया, वो स्ट्रैंड जो है वहां तो सिर्फ आपको सिंपल, यहाँ आप सिर्फ स्ट्रैंड देख रहे हो। ये स्ट्रैंड जो छोटा सा पोर्शन वहां पे नेक्स्ट डायग्राम में शो किया हुआ है कि ये पोर्शन किससे बना हुआ है। ओके, तो ये जो बना हुआ है वो इन चीज़ों से बना हुआ है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। और स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को ही हम जीन्स बोलते हैं। ओके, यू नो कि जीन्स क्या होती हैं? जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए, तो बड़ी सारी जीन्स मिला के आपका डीएनए बनता है। तो स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को ही हम जो जीन्स होती हैं। ओके, बाकी इसमें और बड़ी सारी चीज़ें हैं। इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, बट जस्ट अ कॉन्सेप्ट आइडिया कि व्हाट इज़ अ डीएनए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ वेरी लॉन्ग। ओके, ये क्वाइल्ड होता है हमारी बॉडी में। जैसे हमारी बॉडी में डीएनए क्वाइल्ड जो है, जैसे वो थ्रेड होता है ना क्वाइल, तो ये बिल्कुल क्वाइल होके रहता है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग। ओके, इट इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, एंड जस्ट रिमेंबर कि दिस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डीएनए। ओके, एंड इफ यू स्टडी, आप इसको स्टडी करो, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम आई विल गिव यू द आंसर। ओके, बट दिस इज द जस्ट जनरल कॉन्सेप्ट कि है क्या डीएनए। दिस इज स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ये इसके स्ट्रैंड्स हैं और ये बीच में ब्रिजेस हैं, दिस इज अ ब्रिजेस। ओके, सो क्लियर? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so anything you want to ask? Please tell me, any question is there? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, I have a question from that theory of inheritance means that double cross means a single cross one, Yes. monohybrid cross. Yes. Ma'am, in Yes. that, in the second step, ma'am, we do self-fertilization of the tall plant, right? Yes. 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 Because we get all the tall plants. So in that case, can't we do means cross-pollination because all the plants are tall? Cross pollination of the tall plant. Yes, ma'am, of the F2 generation. डियर, मैंने आपको बोला था कि हम जो F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं उनके बीच में हम वो करवा रहे हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग मीन उनकी आपस में करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसको सेल्फिंग बोलते हैं, मीन्स कि जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए उन्हीं ऑफस्प्रिंग्स के बीच में हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं, ठीक है। जो आप क्रॉस बोल रहे हो, क्रॉस का मतलब ये होता है कि एक पेरेंट से 4 प्रोड्यूस हुए, फिर किसी और 2 पेरेंट से वो जो 4 प्रोड्यूस हुए, हम उन 2 डिफरेंट वेराइटीज को लेके तब आपकी क्रॉस आ जाती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यहाँ आपकी सेल्फ है, या फिर सेल्फिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एक ही पेरेंट ने जो 4 ऑप्शन प्रोड्यूस किए, हम उन्हीं को ले रहे हैं, ठीक है। हम दूसरा भी ले सकते हैं, हम कोई और 2 पेरेंट्स अगर वो कोई ऑप्शंस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम डिफरेंट ऑप्शंस के बीच में जो प्रोड्यूस करवाते हैं, दैट इज द क्रॉस। ओके, यूजुअली ह्यूमन बींग्स के केस में तो यही होता है। ह्यूमन बींग्स के केस में से थोड़ी कि पेरेंट्स प्रोड्यूस करेंगे ऑप्शंस और वही ऑप्शंस आगे रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना।
ये तो प्लांट्स में हो रहा है। अगर आप ह्यूमन बींग्स में लेते हो तो ह्यूमन बींग्स में तो ये होता है कि एक पेरेंट के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, फिर किसी और पेरेंट के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो दोनों आपस में रिप्रोड्यूस जो है करते हैं। ओके, दिस यू आर आस्किंग? Yes, sir. It's clear now. ओके, इट्स क्लियर? Okay. So are there any question, anything you want to ask? Yes, please tell me. No question? Can I end the session now? Yes, please give me the response. Can I end the session now? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So all of you can leave the class.